someone asked on the group, what is critical reasoning? Right, पूछा था अभी किसी ने थोड़ी देर पहले. I was working on the PPT for the class, so I could not answer. So do you guys have any idea what's critical reasoning? You guys can unmute and talk. कभी सुना है ऐसा कुछ? In fact, I would prefer if you guys talk. Okay, so I would say RC तो सुना है ना, reading comprehension वो तो करते आए हो? Yes, ma'am. ठीक है. So one thing is RC, you have like long passages, बहुत सारे paragraphs होते हैं, and then there are a number of questions, 4, 5, 6, 7, जितने भी होते हैं. So critical reasoning is slightly different. A lot of people say critical reasoning this, critical reasoning that, बहुत difficult topic होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Critical reasoning is, let's say, mini RC पर से एक छोटा सा paragraph होता है, उसमें एक या maximum 2 questions होते हैं, right? The only difference is यहाँ पर you have to break the argument, understand each part of the argument, and then probably answer, right? और इसके लिए I would say थोड़े बहुत हमें concepts करने होते हैं, assumption, conclusion, पहले से ही we'll have to understand what are they, and थोड़ा सा orientation अलग होता है बस. That's it. Otherwise critical reasoning में ऐसा कुछ भी नहीं है कि people create a lot of problem around it या फिर बहुत ही लोगों ने बड़ा चढ़ा कर रखा हुआ है critical reasoning में, ऐसा कुछ भी नहीं. First. Second thing, when I talk about critical reasoning, इसको आपको सिर्फ ये देखना है how to approach it. One, आज तक किसी ने कभी किया है, कोई क्वेश्चन देखा है? Okay, I don't think so. Second, why is critical reasoning important? Number one, सबसे ज्यादा ये important है for people who are planning to give ZAT. ZAT में direct critical reasoning के questions बहुत आते हैं. One. Number two, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, be it CAT, be it TIS और whatever, RC तो सब में आता है, right? So RC का let's say अगर मैं first step कहूँ तो first step is critical reasoning. How? We'll just see how to read, how to analyze an argument, and how to answer, right? So let's start. Okay, just look at this particular image. Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so there is a building kind of a structure wherein you can see there are statements which are what? Pillars, right? Pillars हैं statements या premises भी बोलते हैं, and then you have conclusion which is based on your statements and premises, right? Conclusion हमेशा statements और premises से ही आता है. और उसके अलावा if you see there is a base. What is the base? The base is the assumption, right? So for any argument, assumption is the base, right? So ये तो मेरा एक argument है. This is just theory. I'll explain with examples as well. Don't worry about that. ठीक है. अब structure of the argument तो हो गया. All of us know what is conclusion? Yes, ma'am. Conclusion basically whatever is given to me, उसमें से कुछ अगर मैं derive कर सकती हूँ तो उसे conclusion कहते हैं. So conclusion is something I can derive from what is given to me, right? So मुझे कुछ statements given है, then I have options. I just have to say which of the following is a conclusion. और जरूरी नहीं है कि conclusion summary हो. Can anyone tell me what is the difference between a summary and a conclusion? Summary like summarizes the entire paragraph, but conclusion is just what is coming out of it, the end part of it, like the decision or whatever is the end product of it. Yeah, absolutely. You're right. So let's say summary is something which is the gist of the passage, right? Pura end to end kya gist hai, what is the passage talking, or let's say at times we also say the central idea, या फिर main हम किस चीज की बात कर रहे हैं, that is the summary. But as you rightly say, what is a conclusion? Conclusion is something which you can derive based on the passage, right? A conclusion may or may not cover anything and everything of the passage. Just होना जरूरी नहीं है. But because of some reason आप अगर उसे derive कर सकते हो तो that's conclusion. So are you clear with the difference between summary and conclusion? Yes, ma'am. There comes the third term, inference. Inference क्या होगी फिर? Is it any different from conclusion?
Yeah, like inference indicates what may be the conclusion, but it isn't a conclusion in itself. It's like an indicator. Okay, okay. So let's say inference is something wherein, see, it's something is given to me और उससे मैंने सीधा derive किया, वो तो conclusion था, right? Inference is something wherein I infer या फिर I logically say कि ठीक है ये हो सकता है. This can be logically inferred. That is the difference between a conclusion and an inference. For example, in a passage, if you are given 4 and 2 separately, ठीक है, तो conclusion होगा 4 and 2. But if I say 4 plus 2 is equal to 6, 6 is the inference, right? अभी एक क्वेश्चन होता है कंक्लूजन स्टेटमेंट और अजम्पशन का. चलो कंक्लूजन तो समझ में आ गया. डू यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाट इज अजम्पशन? जस्ट गिव इट अ ट्राई. मतलब We're assuming something. you try to think from one angle, assuming something, and then if like you try to build upon that, assume Absolutely. Absolutely, Saurav, that's the right answer. So one thing about assumption of an argument is at any point of time assumption आपको आपके statement में या फिर आपके पूरे argument में कभी given नहीं होगा. As the diagram shows, assumption is the base of the argument, right? किसी भी argument का जो base होता है ना, उसको हम assumption बोलते हैं. One. Second, assumption is always from the point of view of the speaker या फिर author. ठीक है. So as Saurav rightly said, assumption is that statement जिसके basis पे मैंने कोई argument form किया है या फिर let's say मैंने कुछ बोला है कि ऐसा होता है because of some assumption, या फिर let's say बहुत छोटा सा एक example लेते हैं. ठीक है. Okay, government imposes a lot of fines, right? Right. Government ने एक बार पीछे आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, है ना? So what they did was they imposed a lot of fine on everything. That if you do not follow the rules, you will have to pay, let's say 5K, right? So government ने जब ये किया, right? What would be, what do you think government का assumption था? मतलब government assumes that to save that money, they will not do this thing. Like they will abide by the rules. Exactly. So गवर्नमेंट का assumption था कि अगर penalize करोगे तो शायद लोग rules break नहीं करेंगे, right? तो ये assumption था. अगर मैं आपको पूरा ये argument कहीं लिख के देती कि government has imposed this, ठीक है, तो इसमें assumption लिखा हुआ नहीं है. But अगर आप देखो, अगर आप इस assumption को hit करोगे, let's say 1 मिनट के लिए मैं कहती हूँ कि ये assumption मेरी hold नहीं करती, तो मेरा argument stand नहीं करेगा. Let's take another example. Okay, advertisement सब देखते हो, willingly और unwillingly देखने तो पड़ते हैं. देखना ही पड़ता है. Yes, ma'am. है ना? 5 seconds. Exactly. So जब कोई advertisement होता है, ठीक है, let's say बहुत सारे advertisers हैं, right? Before making an advertisement, एक advertiser का या फिर let's say जो company है, सबकी क्या assumption होती है? कि हमारी ब्रांड बन जाएगी, लोग देखेंगे और Customers को attract करना. Exactly. सबकी assumption होती है कि लोग मेरा ad देख के मेरा product या service खरीदेंगे या use करेंगे, right? तो ये तो सबकी common assumption हो गई, right? Now move on. But सारे advertisement में कुछ एक specific assumption भी होती होगी, तभी तो अलग-अलग advertisement बनते हैं, वरना सारे same नहीं होते, है ना? So let's say, okay. Can you recall any advertisement जो सबने देखी हो? Okay, fine. Johnson and Johnson के advertisement याद है कैसे होते हैं? मतलब एक बच्चा होता है, हाँ, वो गाल ऐसे वाइब्रेट कर देता है. बच्चा होता है, लेकिन साथ में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक सुंदर सी मॉडल होती है जो कि मदर होती है. हर एडवर्टाइजमेंट में होता है. आपसे एक बात बताओ, बेबी प्रोडक्ट के एड में देयर इज अ मॉडल, तो इसमें क्या अजम्पशन रही होगी एडवर्टाइजर की? अटेंशन मिलेगा ज्यादा. राइट, यू आर एक्चुअली राइट. सो अगर देखो होने को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट है, बट प्लीज टेल मी इसका टारगेट ऑडियंस कौन है?
मदर। मदर्स हैं, फादर्स भी हैं भाई। हाँ बट वो तो हाँ, ये दिखाते है। नहीं ना, देयर इज नो फादर इन द पिक्चर मोस्टली। अरे तो फादर देखेंगे ना फादर, मॉडल को। एग्जैक्टली, सौरभ को समझ में आ रहा है। क्या क्या आई डिडंट हियर इट। साइकोलॉजी है यार, मैं भी आना चाहिए। हाँ बट जेंडर बायस भी है। नहीं जेंडर बायस नहीं है, दिस इज प्योर बायोलॉजी, नथिंग एल्स। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल के एड्स में भी स्पेशली मॉडल्स दिखाते हैं बिकॉज एग्जैक्टली, आई रियली डोंट वांट टारगेट द टू कोट। परवर्टेड। एग्जैक्टली, एक्स का वो एड देखा था जिसमें वो एक आदमी है, वो चॉकलेट का वो भाग रहा है। यस मैम। इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ तो भी अजम्पशन होती है। सो प्रोबेबली फॉर द जॉनसन एड द अजम्पशन इज प्रोबेबली, अगर मदर्स देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं भी ऐसी हो जाऊंगी, या फादर्स देखेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इंटरेस्ट है ना। Similarly, होने को हमारे पास, I want to give you good examples of advertisements, but do you remember Mountain Dew? डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत वाला। Exactly. I think these are the most brainless advertisements available. Yeah. Think about it. Right. But आपको क्या लगता है कि यार एडवर्टाइजर बेवकूफ है जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाता है? नहीं, बहुत समझदार है। बट उसके यहाँ पर एक बहुत छोटी सी assumption है, which is people have pea brains. मतलब लोगों को यही बकवास समझ में आती है, लोगों को यही पसंद आता है, तो उसकी वो यहाँ पर अजम्पशन है, राइट। अगर ये अजम्पशन नहीं होगी तो एडवर्टाइजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप में से कितने लोग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हो? नो वन। अच्छा चलो, इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है? आई एम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। ओके, जागृति? यस। ओके, सो इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आप मुझे एक चीज बताओ, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस होती हैं? यस मैम। ठीक है, बहुत सारी assumptions होती हैं। लेट्स से समथिंग लाइक इफ 2005 इज द बेस ईयर, a इज इक्वल टू b, किसी को कांस्टेंट कर देते हैं, बहुत सारी assumptions होती हैं। यस मैम। अगर मैं उन assumptions को हटा दूं, इकोनॉमिक्स के साथ क्या होगा? Like entire economics is based on assumptions, so like can't say. मतलब गिर जाएगा इकोनॉमिक्स। Won't make sense. इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, राइट? अगर मैं सारी assumptions हटा दूं तो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर assumptions आर। क्रिटिकल रीजनिंग में भी assumptions आपकी यही होती हैं कि बेस ऑफ योर आर्गुमेंट होता है। और अ फ्यू थिंग्स अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। वन, देखो ये हमेशा हाउ टू गो अबाउट दिस, मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। हाउ टू गो अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इज, देखो आरसी में तो हम हमेशा, बीट एनी फैकल्टी, हमेशा हम आपको यही बोलते हैं कि यार देखो, इट इज अप टू यू, आपके ऊपर जो भी आपको सही लगता है, पहले पैसेज पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, राइट। बट क्रिटिकल रीजनिंग में आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर आंसर करना है। वो मुझे क्यों करना है? क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट selecting the best option out of the available ones, right? Selecting the best option and negating the not so good ones, right? और एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे क्रिटिकल रीजनिंग में, which is कुछ एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं ना, ऑलवेज, नेवर, राइट? इसका आप हमेशा ध्यान रखना, जनरली ये आंसर में नहीं होते। थर्ड थिंग टू रिमेंबर अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑलवेज रिमेंबर द सैंपल साइज। व्हाट डू आई मीन बाय सैंपल साइज? बताओ मैम। सैंपल साइज बेसिकली व्हाट, मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट्स से ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? सो आपको 3-4 ऑप्शंस हैं कि लेट्स से ताज ग्रुप ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो चीज लेट्स से आपके ओबरॉय ग्रुप को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? व्हाट डू यू से? अगर ताज ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, ओबरॉय को वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? डिपेंड्स, मतलब वो तो Depends on the sample size. What I am trying to say is, अगर मैं ताज की बात कर रही हूँ, राइट? तो अगर मैं ताज की बात कर रही हूँ तो हाउ कैन आई एक्चुअली से कि यार ठीक है, अगर ताज की बात कर रहे हो तो ओबरॉय, सॉरी, ओबरॉय को भी वो करना चाहिए तो ताज कर रहा है। डज इट साउंड लॉजिकल? नोप।
क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों की कंडीशंस अलग हो सकती हैं. सो ऐसा क्रिटिकल रीजनिंग में एग्जामिनर कई बार करता है. फॉर एग्जाम्पल वो बात कर रहे क्वेश्चन में दिल्ली की, फिर उसके बाद उसने आपको एक सपोर्टिंग जो लेट्स से ऑप्शन था वो दे दिया पूरे इंडिया का, बात कर रहा था इंडिया की, और फिर ऑप्शन में आपको दे दिया वर्ल्ड. सो एक छोटे छोटे जो कैच है ना, आपको इनका बहुत ध्यान रखना है. ये आरसी में भी होता है ना कभी कभी मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सी इफ यू आर गुड विद सीआर, आरसी तो पक्के से निकल जाएगा. हमेशा यही होता है. देखो आई टेल यू सौरव एंड एवरीवन, आई टेल यू वन थिंग वेरी, बहुत ही बेसिक सी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, व्हिच इज, एक चीज हमेशा याद रखना, गेट इनटू द साइकी ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है, ट्राई डूइंग दिस एक्सरसाइज समडे. एक पैराग्राफ उठाना, ट्राई मेकिंग क्वेश्चंस, आरसी वाले क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना. ठीक है, देखो पैराग्राफ मिल जाएगा कई बार तो यू विल हैव टू लाइक जस्ट डू अवे विद इट कि नहीं यार इससे तो क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे. चलो कोई पैराग्राफ मिला, आपने क्वेश्चंस बनाने शुरू किए, फिर प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? क्वेश्चन मैंने बना लिया, मैंने क्वेश्चन के साथ उसका सही ऑप्शन भी बना लिया. अब प्रॉब्लम आती है जब स्टूडेंट को मुझे ट्रिक करना है. मतलब क्लोज ऑप्शंस देना है कि वो कंफ्यूज हो पाए. एग्जैक्टली. कितने ही तरीके होते हैं, एक बार वो आप तरीके मास्टर कर लो कि अच्छा ये तरीके से जनरली ट्रिक किया जाता है, आपका ना सीआर कभी गलत होगा ना आरसी. नाइस. ठीक है, तो देखो कंक्लूजन देखा, अजम्पशन देखा, फिर आपके आते हैं स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट. व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट? इट इज बेसिकली जो मेरे को पूरा आर्गुमेंट गिवन है उसके सपोर्ट में एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट दी है. ठीक है, तो ऑप्शंस होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट strengthens the argument. Strengthening as in उसको support provide कर रहा है, उसको और strong कर रहा है. So it's nothing but adding another pillar as this particular picture shows. ठीक है, it's one of the external statements या premises जो मुझे add करना है. This is strengthening. अब strengthening होगा तो weakening the argument भी कुछ होगा, right? Right. So weakening the argument is मुझे पूरा आर्ग्यूमेंट गिवन है, सब कुछ है, बट उसको वीकन करना है. कुछ मुझे 3-4 एक्सटर्नल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और कहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द आर्ग्यूमेंट. वीकन्स मतलब जो मेरा आर्ग्यूमेंट है या तो मैं उसकी अजम्पशन हिट करूं, कहीं ना कहीं कोई लूप होल मुझे पकड़ के बताना है कि देखो मैंने यहाँ पे वीक कर दिया. राइट. सो नाउ आई मैं थोड़ा सा बैक पीछे जाऊंगी, रिवाइंड में जाऊंगी. मैंने अभी आपको कहा था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज. अभी समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पहले पढ़ना? क्योंकि देखो अगर मुझे गिवन है वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, तो मैं स्टार्टिंग से ही वो सोचना शुरू कर दूंगी ना कि अच्छा वीकनिंग है, हाँ मैं लूप होल ढूंढूंगी. स्ट्रेंथनिंग तो ठीक है, इसको कहाँ से और स्ट्रॉन्ग करूंगी. अजम्पशन तो ये कि देखो कहाँ अजम्पशन लगेगी. राइट. सो अभी तक क्लियर है सब कुछ? Let's move on to a very simple example. Very simple. So let's say मेरे पास एक statement है, Roy does not complete his projects on time. ठीक है, और ये पूरा एक argument है और conclusion है Roy should be fired. Do you see a gap in this argument? ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद सीधा कंक्लूड कर दिया? हाँ मतलब बोलना चाहिए था कि we tried but could not, he didn't cope up, I don't know. मतलब देखो हाँ you're right, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लग रहा कि does not complete तो should be fired. So there is no relationship between completing projects and firing, right? तो यहाँ पे क्या missing है? Assumption. People who do not complete their projects on time should be fired. यहाँ पे ऑथर ने या फिर स्पीकर ने एक assumption लिया है जिसके बारे में हमें नहीं बताया, right? But the moment I have this assumption, does it make sense now? Yeah. ठीक है, तो ये हो गया मेरा kind of assumption when I have an assumption. ठीक है, अब एक strengthening वाली चीज देखें. अगर मुझे इसे strengthen करना है, what will I do? एक external statement है. It has been observed in the past that people who do not complete their projects on time are a burden on the company. Does this make sense? Yeah, evidence type दे दिया थोड़ा. Exactly. So एक external statement दे दी जिसमें ये बता दिया कि पहले ऑब्जर्व किया है कि ये लोग तो बर्डन होते ही हैं. तो है तो एक्सटर्नल स्टेटमेंट, बट इससे मेरे आर्ग्यूमेंट को कितना वेट मिल गया ना.
Yes, ma'am. ठीक है. So next, अब मुझे इसे weaken करना है. People who do not complete the projects on time are the most creative ones. Does it weaken my argument? Yeah, because then they should be kept. मतलब, we should find a way to keep them. Exactly. So basically वो इस चीज पे कह रहे थे कि टाइम पे काम पूरा नहीं करते तो फायर कर दो. अब जो ये एक्सटर्नल स्टेटमेंट है उसने आके बोला कि नहीं वो तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है. सो इट बेसिकली इसने किस चीज को हिट किया? आपके अजम्पशन को इसने पूरी तरीके से हिट कर दिया, राइट? सो दैट इज वीकनिंग. क्लियर? सो वील स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस. हम हर आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करेंगे, पूरा अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे एंड देन वील आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है? Okay. Okay, so this is a conclusion question. All of you, please read this. Please read the argument, question, and options. Then we'll discuss. Please don't say the answer. Take 2 minutes. पूरा analyze कर लो, फिर बात करते हैं. So have you guys read? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what do you think is the answer? C. E What लग else? रहा है. E, B. I think E. Someone said B as well. Okay. तो चलो देखते हैं. I'll analyze each and every Yeah, option. B. ठीक है. Which one of the following most accurately expresses the main conclusion drawn in the argument above? तो एक बार मुझे जरा आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करके बताओ ऊपर. सॉरी, कंक्लूजन. कंक्लूजन ही तो बताना है. कंक्लूजन तो हमें बताना है, लेकिन ऊपर जो आपका वो है, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट है, उसमें मेन बात क्या हो रही है ये बताओ. अच्छा,
कि Adobe जो है ये ideal material है for construction in. So let's say the first statement is the most important statement. बाकी सब तो additional है. ठीक है. First says Adobe is a suitable substitute for other building materials. Does it make sense? नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि बाकी भी suitable है, तो ये बस एक substitute है उनका. हाँ, मतलब ये तो कहीं substitute की बात ही नहीं हुई है. So this is not relevant. क्लॉथा कह रहे सबसे अच्छा है. हाँ. In the desert, Adobe buildings remain cool during the heat of the day, but retain the warmth of the sun during the cool evenings. ये कहाँ बोला है? ये बोला है, but it's just not that. मतलब ये तो वो है कि इसका effect है. Yeah, second line. ठीक है. Third, because Adobe conducts heat very slowly, Adobe houses maintain. ये reason कहाँ given है? कौन सा वाला? Because Adobe conducts heat very slowly, Adobe houses maintain a pleasant constant temperature. Constant तो maintain नहीं करते यार, है ना? यहाँ पे मुझे constant के साथ problem है. D. Pleasant है, constant नहीं है. Constant नहीं है. Ideally a material used. Ideally तो material की बात ही नहीं हो रही, हम तो Adobe की ही बात कर रहे हैं ना. So this is what I meant. जब मैंने आपको कहा था ना, एक चीज की बात कर रहे होते हैं, फिर suddenly किसी और चीज पे चले जाते हैं. और प्लस इट डजंट मेक सेंस द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आल्सो कि शुड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जरूरी थोड़ी है कि मतलब एग्जैक्टली. सो दिस इज आल्सो अबाउट टोन. रिमेंबर टोन ऑफ द आरसी. यहाँ पे तो टोन ही अलग है. कुछ क्योंकि इट्स लाइक रिकमेंडेशन इस केस में. हाँ. Okay, so last, Adobe is an especially suitable material to use for building houses in desert environments. Yes, this is exactly the conclusion. Right, clear हुआ? और अभी आपने देखा एग्जामिनर ने कितने क्लोज ऑप्शंस बनाए हैं. ठीक है. तो दिस इज कंक्लूजन. ये मेरा डायरेक्टली आपके पैसेज से आया है. ठीक है. लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दिस इज इन्फ्रेंस. प्लीज रीड.
Have you guys read? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So इसमें infer करना है. What do you think according to you guys is the answer? B. B. All of you B. Yes, ma'am. Yes. B for Okay. basketball. हाँ, that I'm happy. मतलब ये तो सभी का ठीक हो गया. So, did you notice the difference between conclusion and inference? Yeah, inference is like a step further. Yes, हम exactly. derive कर रहे हैं वो मतलब conclusion से भी. तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि if these regulations had been followed, right? Right, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ से infer किया कि violations हुए हैं, right? कि पहले कभी violations हुए होंगे तभी तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, right? So इससे बहुत clearly आपने infer कर लिया, right? और बाकी सारे जो भी options हैं किसी ना किसी basis पे आपने उनको negate कर दिया होगा. ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत है किसी को भी? और वाज इट क्लियर? वाज इट क्लियर? हाँ जी. Okay, then look at this one. This is an assumption question. हो गया मैम. हो गया? तो बताओ क्या आंसर लगता है? E. अदर्स? E. बाकी लोग? E for elephant. हाँ हाँ सुना मैंने, बाकी लोग भी बोलेंगे, अभी सिर्फ 2 का है. ये लग रहा है मैम. सबको ही लग रहा है? तो कैन समवन एक्सप्लेन दिस टू मी? हाँ मतलब E में तो यही कह रहा है कि जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो इतनी हो रही है कि वो आउट पे कर जा रही है, मतलब इनकन्वीनियंस एज एन इनकन्वीनियंस ऑफ बाइंग मोर आइटम्स जबकि चाहिए कम, उस इनकन्वीनियंस को भी आउट पे कर जा रहा है फाइनेंशियल सेविंग्स, सो इकोनॉमिकली बेनिफिट करेगा. ठीक है, एग्जैक्टली. सो दैट इज राइट, बट यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन मेरा कैसे बदल गया. Which of the following is an assumption necessary to the author's argument? ऑथर का पूरा आर्ग्यूमेंट किस चीज के बारे में चल रहा था कि रिटेल स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स में आइटम्स को ग्रुप कर देते हैं, बट जो बल्क बाइंग होती है उसमें सेविंग्स ऑफर करते हैं, राइट? सो इट मेक्स अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर बजट कॉन्शियस कस्टमर्स. जो बजट कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल चॉइस है, राइट? अब देखा जाए ये तो बड़ा कॉमन सेंसिकल सा था, सबको समझ में आ रहा था, तो बहुत इजी भी हो गया. तो यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरा आप ऑप्शन से ही करोगे, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे अगर मुझे कुछ लेट्स से वो बताना है अजम्पशन, तो अजम्पशन किस चीज के बारे में होगी? कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के बारे में कि बल्क बाइंग प्रेफर करते हैं, फाइनेंशियल सेविंग्स क्या चाहिए, राइट?
हाँ. So I think this was pretty straightforward. Is it clear to everyone? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. So strengthen this one. So have you guys read this? Yes. Yes, ma'am. Is it D? D बताओ. लग रहा है. D. और बाकी लोग को क्या लग रहा है? D for doll. ठीक है, मतलब ये कुछ ही लोगों को लग रहा है, बाकी लोग सो गए हैं लॉगिन करके या रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. नहीं, डी लग रहा है. भव्य और सौरभ को डी लग रहा है, बाकी लोग ई लग रहा है. और कोई? ई लग डी रहा है. या फिर ई. डी या फिर ई? ई लग रहा है. ई लग रहा है, डी लग रहा है. अच्छा ठीक है. देखो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि जितने भी लोग हैं ना, ये लग रहा है और ये लग रहा है, जो 2 ऑप्शन वाले लोग हैं, हमेशा प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ हैविंग 2 ऑप्शंस इन योर हेड. जब भी आप ऑप्शन देते हो ना, एक ही दो, चाहे गलत दो, आई एम हैप्पी. 2 मत देना कभी, क्योंकि वो आदत ना फिर बच्चों की एग्जाम तक बनी रहती है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, and then you're not able to really decide, right?
तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो तो मत करो। चलो ठीक है, तो अब आंसर देख लेते हैं। Wait, C क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, सी क्यों नहीं हो सकता? ओके, लेट्स सी। स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या है? अ सर्वे ऑफ एड्रेस चेंजेस filed with post offices and drivers license bureaus over the last 10 years has established that households moving out of the city of western outnumbered households moving into the city 2 to 1. Therefore, we can expect that the next year's census, which counts all residents regardless of age, will show that the population of Western has declined since the last census 10 years ago. So basically मुझे ये दिखाना है कि वेस्टर्न की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, एंड मुझे एक एडिशनल रीजन देना है, ठीक है। तो someone said B, right? So over the past century, any census of Western showing a population loss was followed 10 years later by, how is this making sense? फिर someone said, अगर पिछले वाले सेंसस के फिगर्स दिए होते और बोला होता कि वहां गेन था, तो शायद डिराइव कर पाते हैं हाँ, ना उससे। मतलब इसमें कुछ टाइप की हमें वो कंपैरिजन गिवन है, बट वो तो मुझे करना ही नहीं है। मुझे तो बेसिकली एक रीजन देना है, एक एडिशनल रीजन देना है कि हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Now, someone said E. Most people moving out of Western were young adults who were hoping to begin a career elsewhere, whereas most adults remaining in or moving into the city had long-standing jobs in the city. इससे आपको कैसे पता चला कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा? क्योंकि जो यंग एडल्ट्स बाहर गए, जो एडल्ट सिटी में भी हैं, they are anyway in the age of reproduction, right? D says most adults moving out of the Western were parents who had children living with them, whereas most adults remaining in or moving into the city were older people who lived alone. So that's why यहाँ पे आपको ज्यादा specific reason मिल रहा है ना एक additional कि क्यों population कम हुई, ठीक है। So strengthening is like additional statement. So the answer would be D है, ठीक है। और प्लस उसमें ये भी बोला है ना कि सेंसस जब ले रहे हैं तो रिगार्डलेस ऑफ एज भी है। हाँ, व्हिच इज वेयर वो चिल्ड्रन वाला भी आ रहा है कि चिल्ड्रन भी काउंटेड होंगे। ठीक है। सो स्ट्रेंथनिंग समझ में आ गया कि एडिशनल हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब मैम सी तो वीकन कर रहा है ना। सी मेनी पीपल मूविंग इनटू द वेस्टर्न सिटी fail to notify either the post office or the driver's license bureau that, ये तो एक्चुअली वीकन कर रहा है, ये तो पता है एक एक्सटर्नल लकूना दिखा रहा है। मतलब they just fail to notify, so even that would lead to a decrease in population that is recorded, right? वो एक रीजन दे रहा है कि इसलिए शायद डिक्रीज दिख जाएगा। No, but this is basically उन्होंने खुद नोटिफाई नहीं किया, but there can be other ways। ये एक बिल्कुल एक्सटर्नल सा रीजन है। अच्छा, okay। मतलब there is a lacuna in the system, उसका मैं क्या करूं? है ना? Okay, obviously अब next week नहीं होगा, so please look at this one। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना। ये पिटने वाला आर्टिकल है तो सो अगेन कोई भी एक्सटर्नल नॉलेज या इमोशंस मत लगाना यहाँ पे।
पढ़ा? हाँ पढ़ा। तो क्या लगता है? एक मिनट दो। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, टेक योर टाइम। हाँ वही। मैम डी है क्या? मैम ए है क्या? ए लग रहा है मुझे भी, ए लग रहा है। अब आप बिकॉज मुझे भी ये लग रहा है। एक चीज है कि इसमें आप ये देख लेना हम वीकेंड किसको कर रहे हैं। Ma'am, is it E? ई, ओके। मैम मेरे को डी लग रहा है। हम बी स्पीकर्स के आर्गुमेंट को वीक करना तो हाँ। बी अच्छा होना चाहिए। एक मिनट रुको। अच्छा मैं तो अजम्पशन निकाल दिया। नहीं एक मिनट। इसमें बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट B. लाइन है, द गवर्नमेंट हैज बेटर वेज टू स्पेंड टैक्स पेयर्स मनी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया होगा। एक मिनट रुको आप। C. But no, not C. भी हो सकता है, हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो फिर वो नहीं करना चाहिए ना, फिर तो बिल्कुल भी। वो लास्ट लाइन को वो करेगा ना। और पीपल हु आर मल्टीलिंगुअल। अच्छा मैक्सिमम है। हाँ सी होगा, क्योंकि C फिर तो होएगा। टैक्सेस कम हो जाएंगे उनके, अगर मल्टीलिंगुअल नहीं रखा तो। Now you guys are making sense. So let's see. हाँ सी। Hindi ought to be the official language. No reason for the government to spend money printing documents in different languages just to cater to people who cannot read Hindi. The government has better ways to spend taxpayer money. People across India should read or write Hindi or learn it at the earliest. So basically वो ये कह रहा है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो इसलिए कि जो भी पैसा लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने में, उसमें टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, ठीक है? तो हिंदी को आप लेट्स से एट द अर्लीस्ट उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो, ठीक है? सो फर्स्ट, द गवर्नमेंट करंटली ट्रांसलेट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इनटू मोर देन 18 लैंग्वेजेस। ये कहाँ वीकन कर रहा है? तो बिल्कुल ही मतलब आई वुड से दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। या हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द ये तो वर्ल्ड बल्कि सॉर्ट ऑफ सपोर्ट भी कर रहा है कि हाँ वो तो ऑलरेडी करती ही है, तो करते रहो ना, क्या दिक्कत है? फर्स्ट तो ये कह रहा है। सेकंड, हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टू स्पीक। सबसे पहले तो वर्ल्ड का क्या करूं मैं, है ना? और ये यहाँ पे स्पीकिंग की बात हो रही है, वहां हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट? अब come to see, people who are multilingual usually pay maximum taxes. मतलब मल्टीलिंगुअल को रखना चाहिए ना फिर तो। रखना क्यों चाहिए? इन दिस केस वो मल्टीलिंगुअल नहीं रहेंगे तो टैक्सेस कम हो जाएंगे हम, और टैक्सेस के लिए वो बोल रहे हैं कि तुम बट वो वीकन नहीं कर रहा ना। देखो आप Weaken प्लीज तो कर- आइडेंटिफाई करो, आर्गुमेंट ये है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, राइट, मल्टीलिंगुअल ही रहेंगे तो मतलब हर जगह पे आपको ट्रांसलेशंस तो करने पड़ेंगे, राइट। राइट? तो अगर ट्रांसलेशंस करने पड़ेंगे तो उसमें टैक्स पेयर का मनी जा रहा है, ठीक है? बट बात तो ये है कि जो टैक्स पेयर का मनी जा रहा है वो टैक्स पेयर तो मल्टीलिंगुअल है खुद ही। वही मैक्सिमम दे रहे थे। अच्छा हाँ ठीक है, तो वो जो टैक्स पेयर है वो तो खुद ही मल्टीलिंगुअल है, तो इसमें तो उन्हें तो कोई एनी में फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनका पैसा क्यों जा रहा है? सो दैट्स व्हाई सी वुड बी द आंसर। राइट। ये थोड़ा सा काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, क्योंकि उसमें वो एक लाइन हम भूल जाते हैं गाइस। सो देखो, अजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, राइट? इसके अलावा भी हमारे पास ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यू कैन से रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट, मिसलेनियस क्वेश्चंस। सो बेसिकली अब जो हमारा जो आर्गुमेंट है ना, जो क्रिटिकल रीजनिंग है, थोड़ा सा सीआर की तरफ जा रही है,
कैसे? Because there can be a lot of questions, there can be a lot of ways in which questions can be given to you. For example, अगर आप ये question देखो, ये होते हैं resolving the paradox question. What do you mean by a paradox? conflicting मतलब Conflicting ideas, या कुछ conflict है. What do you mean by resolve? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सब कुछ में रिजॉल्व करना, या फिर जो पैराडॉक्स है ये बताना है कि ये पैराडॉक्स क्यों है, इसको लेट्स से गेटिंग समथिंग टू अ सेंट्रल पॉइंट, दैट्स रिजॉल्विंग, राइट? सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द अपरेंट पैराडॉक्स? तो अब पैराडॉक्स ढूंढना पड़ेगा, मतलब आई रेड द क्वेश्चन, अब मैं सबसे पहले तो देखो पैराडॉक्स ढूंढूंगी है कहाँ. A survey conducted, okay, you guys also read, I'll also read. Okay. Because if I keep speaking, you won't be able to read. पढ़ लिया. पढ़ लिया? पैराडॉक्स देखा? हाँ, मतलब कि एक एंड पे तो जो यू नो दे हैव द एसेट्स वो कम दिखा रहे हैं, और दूसरे एंड पे जो ये है क्या बोलते हैं, जिनके पास है नहीं इवन पानी एंड गैस, दे आर शोइंग कि है. ठीक है, वो दिखा रहे हैं, मतलब कुछ तो यहाँ पर है, जो ये पैराडॉक्स है कि कुछ दिखा रहे हैं. आयरनी आल्सो. हाँ, आयरनी भी है, बट पैराडॉक्स है, कुछ दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और कुछ जो बिल्कुल नहीं है वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास है. सो वी हैव टू ये बताना है कि पैराडॉक्स क्यों है. नाउ रीड द ऑप्शन. मिला कुछ? देख पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो. वाला ये तो नहीं होगा. सी लग रहा है. ए भी हो सी सकता है. सी लग रहा है. ए में ये दिक्कत है कि इफ वी थिंक कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो क्यों नहीं देगा, फिर तो देना ही चाहिए. बट हाँ, मुझे भी ए में कंफ्यूजन हो रहा है. देखो, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स में हमेशा ये चीज याद रखना कि देयर आर पूरा रिजॉल्व, पूरा रिजॉल्व करेगा. देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड, राइट? ओ सी है ना, क्योंकि फर्स्ट कहता है, बाकी लोग को क्या लगता है आंसर है? C. ठीक है, ग्रेट. सो समवन सेड ए बोला था ना किसी ने. द सिटी डज नॉट पे वेलफेयर अनलेस द एप्लीकेंट्स हैव एट लीस्ट सम थिंग्स वर्किंग फॉर देम. ये तो मतलब पैराडॉक्स कहाँ ये रिजॉल्व कर रहा है? ये तो एक, जैसे कहते हैं ना, एस्केपिस्ट नेचर है, ये एक रीजन प्रोवाइड कर रहा है. See, देखो, while the applicants may be willing to accept that they don't have certain claims, they felt embarrassed having to accept that they don't have most things, right? So यहाँ पे ये दोनों चीजों को अकाउंट कर रहा है कि ये भी है और ये भी है, right? So that is why resolving the paradox में हमारा आंसर हुआ C. Everyone
Okay. Next question. Which of the following most accurately describes the method of reasoning used in the argument? Method of reasoning in the sense, यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना है कि ये आर्ग्यूमेंट किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है, राइट? इसमें कभी कभी वो अगर इट्स ऑन पेपर या कुछ भी, तो पेपर पे जल्दी से अगर आप एरोज बनाओगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी हो जाते हैं. जस्ट रीड इट, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड द आंसर्स, फिर बताओ. रेड ई लग रहा है, रूलिंग आउट. व्हाट अबाउट अदर्स? पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी आर्गुमेंट सबने? It's E. ओके, अदर्स? So guys, this kind of question, यहाँ पे आपने देखा, it was not really important कि वो क्या बोल रहा है, उसके बारे में तो question था ही नहीं. The question was how is it said, right? So what's happening is books have their proper location. एक book है which is basically it's not checked out to a borrower. No one in the library is using it, not checked out to a borrower, nor awaiting shelving. It must have been displayed or stolen, right? So यहाँ पर क्या हो रहा है? It's basically जो पिछले facts थे उसके basis पे किसी ने कोई एक statement दे दी कि the conclusion is supported by ruling out other possible explanations. बाकी सारे तो explanation खत्म कर दिए कि ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, observed fact बता दिया. So इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ ये समझा कि कैसे कहा है. क्लियर है? ठीक है. आई थिंक दिस वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये तो आपको ऑप्शंस पढ़ के समझ में ही आ गया होगा. हाँ, वो जैसे लास्ट ऑप्शन लिखा तो बिल्कुल हो गया. उससे पहले थोड़ा वो था क्योंकि वो रूलिंग आउट जैसे ही यू रीड यू आर लाइक ओके फाइन, दिस इज द आंसर. ठीक है. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर है. अगेन अच्छा लग रहा होगा देख के, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है तो.
थियरी तो नहीं है. Inductive generalization. ए लग रहा है. किस किस मैम बी. ओके, किस किस को इंडक्टिव का मीनिंग पता है? मुझे मतलब इन्फर करना, एक जनरलाइजेशन बनाना किसी चीज से, मतलब So एक basically, हाँ, you are right. जनरल लॉ बनाना एक इन्फ्रेंस से. Exactly. एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने पूरा का पूरा लॉ ही बना देते हैं कि ऐसा ही होता होगा, जनरलाइज कर देते हैं. That's inductive generalization, right? Now tell me the answer. C. What did you say? C. C. Okay. Generalization based on authority. What kind of authority is there? कहीं ये बोला है कि the law says या फिर the president says, तो authority तो यहाँ कुछ है नहीं. Next answer. therefore है ना, बल्कि therefore से ही आ रहा है. देखो, argument from analogy. therefore तब करते हैं ना जब इन्फर करते. Yes, A is the answer. वो इसलिए, बाकी सारे नेगेट हो जाएंगे. डिडक्शन, जनरलाइजेशन, डिडक्शन यहाँ है नहीं क्योंकि डिडक्शन इज समथिंग जो एक लॉ है या फिर पूरा लॉ है, उससे मैं डिड्यूस करूँ. डिड्यूस यहाँ कुछ नहीं हो रहा, राइट? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी नहीं हो सकता बिकॉज एनालॉजी इज समथिंग कि एक एग्जांपल के बेसिस पे हम दूसरी चीज कहते हैं तो उसको एनालॉजी बोलते हैं. कंपैरिजन पे. कंपैरिजन या फिर पैरेलल रीजनिंग, ठीक है, तो एनालॉजी भी नहीं है. प्रिडिक्टिव आर्ग्यूमेंट इज जहां पे हम कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, राइट? तो वो प्रिडिक्टिव होगा. तो इट इज इंडक्टिव जनरलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस whom the reporter interviewed, ठीक है, तो कुछ की बात हो रही है, उसके बाद सारे पार्लियामेंटेरियंस के बारे में आपने एक generalized statement दे दी. So this is inductive generalization. That means A, right? Let's move on to next. Similar question. ये एनालॉजी है. ये analogy है. I think this is pretty clear. क्योंकि as this happens, similarly this happens. So एक example के base पर दूसरा example. This is pretty clear. Argument from analogy E. Now look at this. ये miscellaneous question है, थोड़ा अलग ही question है ये. मतलब मैं कहीं से club नहीं कर सकती. So please read. D. Okay. Let others also read. Then we'll discuss. Ma'am D. Okay, Prachi. D. Prishita. It's D. For dog. Yeah, it's D. Okay. So I hope everyone has read. Yes, guys, the answer is D. Jim's reasoning is questionable in that it fails to consider the possibility that, right? So the moment I read this question,
देखो हम इसे कहीं भी लेट्स से स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग कहीं नहीं जा रहा यहाँ पे। हाँ मैं इसको एक एक टॉपिक अगर मुझे हेड में डालना ही हो तो मैं ये बोल सकती हूँ व्हाट इज द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, राइट। सो ये फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे फ्लॉ ढूंढना था कि जिम जिम से कुछ बोला कि ये करना है, जिम ने ऐसा क्या नहीं किया। सो यस, मैग्नेट अट्रैक्ट सब्सटेंसेस अदर देन आयरन, क्योंकि जिम कंक्लूडेड दैट सब्सटेंस डिड नॉट contain iron because substance becomes attached to the magnet. So ये बहुत ही क्लियर सा है। इसमें आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लॉ इन द रीजनिंग में आपको जो सबसे कॉमनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके होते हैं रिसर्चर्स के, कि रिसर्च गिवन है उसमें मे बी सैंपल साइज गलत लिया हुआ है या कुछ भी। चलो आई जस्ट लिसन टू मी, आई गिव यू अ क्वेश्चन, राइट। बस ऐसे ही सुन के आप मुझे बताना। सो देयर इज एन एडवर्टीजमेंट according to which there is an advertisement according to which it says save big on toiletries this Christmas season. क्या Save big on toiletries this Christmas season. That's the heading of the advertisement. अच्छा And the content says buy clothes worth rupees 5,000 from the women's section and get a 10% discount on the men's section. What is the flaw in this argument? क्या था ये? Okay, I'll come again. जो एक एडवर्टीजमेंट है उसका हेडिंग है सेव बिग ऑन टॉयलेटरीज दिस क्रिसमस सीजन। ठीक है। The content says buy clothes worth rupees 5,000 from the women's section and get a 10% discount on the men's section. It's misleading. सही है हाँ। फ्लॉ क्या है इसमें? It's misleading, like the content is not what the heading says it is. एग्जैक्टली तो हेडिंग में आप कह रहे हो टॉयलेटरीज पे सेव करना है, फिर आप कह रहे हो कि डिस्काउंट आपको मिलेगा मेन सेक्शन पे। सो ये फ्लॉ है। सो बेसिकली कोई भी लूप होल उसको हम बोलते हैं फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि यू हैव टू से कि फ्लॉ क्या है आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक एट दिस।
बी लग रहा है बिकॉज ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है. Okay. A. Okay. A. Ma'am, A. All right. Okay. Which of the following options gives options A. give one more option as to why the crime rate decreased because of the terrorist attack? Okay, so terrorist attack हुआ और crime rate decrease हो गया. Okay. Terrorist attacks invariably lead to tremendous losses. The effects of a terrorist attack are not just immediate and can have long-lasting trickle-down effects. Take, for instance, the recent terrorist attack on our capital city. In the weeks following the attack, the crime rate in the city came down significantly from what it was just before the attack. This must primarily be due to the increased presence of police resources that were moved to the area and is thus an indirect effect of the attack. Which one of the following? Okay, so एक और option, एक और reason देना है कि attack की ये rate क्यों कम हुआ है, right? Crime rate. एक ठीक और है. देना So question एक और देना. First कहते हैं the capital city is under increased monitoring leading to quick detection of crimes. ये तो given है ना? ऑलरेडी दिया हुआ है ना, पुलिस तो वही कर रही है. तो additional तो नहीं है. A number of people are frightened because of the terrorist attacks and have fled the capital city. Could be, but रुकते हैं अभी. There was a recorded decrease in crime rate after the terrorist attack in almost all the cities of the country. ये तो सिर्फ एक fact है ना? Intel reports show that the terrorists who pulled off the attack have been committing various other smaller crimes regularly to distract law enforcement from their true purposes. इसकी कोई relevance है? नहीं, मतलब पता नहीं, तो एडिशनल कुछ ऐसे दे दिया. आप बताओ. क्योंकि क्राइम रेट तो डिक्रीज नहीं हो रहा ना, क्योंकि स्मॉलर क्राइम्स तो वो कर ही रहे हैं. The government had initiated schemes to decrease poverty and provide better livelihood for the people. ये तो बिल्कुल ही नहीं है. So इसमें बहुत अच्छा आंसर नहीं है, but the only answer possible is B. B है ना? वो भी मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, but और कोई possible ही नहीं है. बहुत मतलब सारी वही है बार क्लोजेस्ट. एग्जैक्टली बहुत सारी बार आपके साथ क्रिटिकल रीजनिंग में ये भी होगा कि आपको लगेगा कि यार इसमें तो आंसर ही नहीं है, बट मेरे पास छठा ऑप्शन बनाने का आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बेस्ट पॉसिबल आंसर. ठीक है. सो बी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. इनफैक्ट एक गुड न्यूज, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी पैराग्राफ यही है, बस देखो क्वेश्चन बदलेगा. सो पैराग्राफ पढ़ो ध्यान से. Ma'am, refute the argument मतलब? बताओ रिफ्यूट द आर्गुमेंट का क्या मतलब हुआ? नकार. कैन एनीवन रिफ्यूट द आर्गुमेंट करके? कई बार बचपन में बहुत क्वेश्चन आते थे. हाँ, मतलब उसे गलत प्रूव करना. एग्जैक्टली. Weakening the argument. हाँ. या फिर मतलब पूरा आर्गुमेंट ही आपको नलिफाई करना है बेसिकली. हाँ. सो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्गुमेंट, कि मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑथर का.
वो सेंटेंस क्या है? देयर इज नो प्रूफ देन सीईओज ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, फुल स्टॉप, मतलब वो इनकम्प्लीट है क्या? अच्छा, हाँ, I know there is no proof then. Okay, so something like, it should be something like, there is no proof then that CEOs of small organizations should be paid less than CEOs of bigger लेस organizations. देन, ओके। See. कंपनी Okay, so what do you think is the answer? बी लग रहा है। B होगा, B support कर रहा है उसमें। B लग रहा है, managing big organization is more challenging than small. Okay, right. So इसमें author का point of view क्या है कि सबको equally दो, right? क्योंकि या तो performance के ऊपर measure करके दो, वरना सबको equally दो, right? So CEO should be paid equally. This is exactly what the author says. Someone said, see, if CEOs of small companies perform well, the company would become big and so would the CEO's salary. ये तो performance वाली बात हो गई ना जो उसने बोली ही है। ये तो कहीं refute नहीं कर रहा। B says managing big organization is more challenging than small. Exactly opposite to what the author says. Author कहता है equally दो, but ये कहता नहीं, managing big organizations is difficult, right? अब इसी argument पे next question. Strengthen the speaker's argument. Tricky question. पढ़ा? हाँ, एक मिनट। हाँ पढ़ो। मैम ए हो सकता है। हाँ, ए थोड़ा लग रहा है फिर वो, बट ये जस्ट वन हिंट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एलिमिनेशन पे होगा। इट्स लाइक मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे मार्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा ठीक है। हाँ, वो वैसे करके वैसे करके ए ही आ रहा है। Absolutely guys, क्योंकि CEOs of small organizations come from big good educational background. अभी तो लग रहा है कि क्या हो गया, तो है ना, पहले पढ़ के। फिर CEOs in big organization take much longer to reach the top. तो ये तो वीकन कर रहा है, कह रहा है कि अनइक्वल होना चाहिए। वीकन कर रहा है, हाँ। CEOs of big organizations are very difficult to hire. सिमिलरली वीकन कर रहा है। नहीं,
इससे तो फर्क ही क्या पड़ गया, हायरिंग फर्क नहीं पड़ेगा भाई। A few big family नहीं, डिमांड का मतलब मुश्किल है तो उनकी पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए ना, सॉर्ट ऑफ लाइक यू कैन इंफर। हम क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं, हम जीके नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जैसा आपको। ऑनेस्टली इतना दिमाग नहीं लगाते वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, CEOs of big organize, अच्छा नेक्स्ट, a few big family businesses CEO, इसका मैं क्या करूं? नेपोटिज्म दिखा रहा है। हाँ मतलब big organizations contribute more towards moral development। Irrelevant हाँ तो CEO से तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई। So the only option I have is कि CEOs of small organization come from good background ही मुझे करना पड़ेगा कि हाँ उनकी भी एजुकेशन कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहा है, थोड़ा सा ही क्यों ना हो लेकिन सपोर्ट कर रहा है। As you said, इन्हें भी पैसे दे दो भाई। हाँ वही, मतलब बेचारे पढ़ के ही तो है। हाँ तो so the thing is कि अभी समझ में आ गया कि मतलब किस किस रूल आउट कर लिया। हाँ किस किस टाइप से हमारे क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस हो सकते हैं। डायरेक्ट आंसर आएगा, इनडायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें तो देखो क्लियरली बेस्ट अवेलेबल आंसर और कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम आप तो अभी इजी लेवल वाला दे रहे हो ना बहुत। दिस इज इजी, अभी और डिफिकल्ट भी कराएंगे। अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट कराती तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही बुरी लगती। अच्छा अच्छा, छोड़ ही देते। हाँ मतलब बच्चों को अगर डिफिकल्ट कराओ तो वो छोड़ देते हैं स्टार्टिंग में। बट इसमें देखो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस तो थे, बट अभी सब कुछ क्लियर हो गया। कंक्लूजन, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, ट्रेंडिंग, वीकनिंग, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, स्ट्रक्चर, हाँ हो गया। क्लियर है। सेकंड, हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चन, एंड थर्ड थिंग, ये बात आपको क्लियर हो गई कि किस टाइप से आपको मतलब बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन आपको पिक करना है। अगर नहीं भी है कि एक बार में नेगेट हो गया था तो हमें उसको दोबारा उसके पास जाना पड़ता है कभी कभी। एंड अगेन जस्ट कीप रूलिंग आउट ऑप्शंस, जिस जो ऑप्शन पूरी तरह से गलत नहीं लगता उसको एक बार स्टैंड बाय पे रख लेते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ यू गो अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। सो ये इसी अप्रोच से आपको आरसी में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखो आंसर बनाने का तरीका तो दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, और आगे आपकी और एडवांस लेवल की भी क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस होंगे। एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू। ओके, ठीक है, ये पीपीटी आप लोग देख लेना, स्टार्टिंग में जो थोड़े बहुत डायग्राम्स भी हैं वो सब देख लेना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई एम देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, पता ही आपको। ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज प्लीज रीच आउट। एनी क्वेरीज एज ऑफ नाउ? नहीं। ओके गाइज, हैव अ गुड डे। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में पीपीटी भेजती हूँ। ओके, बाय। ओके, Bye. Bye.